Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. सो आपके सॉफ्टवेयर पे होम रिवाइज ओपन कीजिए मैथ्स चैप्टर नंबर 15. लेट्स रिकॉल. Chapter 15 Area. Let's recall. We know that if sides of closed polygon are given in the units centimeter, meter, kilometer, then their areas are in the units square centimeter, square meter, and square kilometer respectively, because the area is measured by squares. 1. Area of square is equal to side square. 2. Area. सो आपको मैंने बताया एरिया एंड पेरीमीटर. सो डिफरेंस बिटवीन एरिया, तो एरिया में हमें क्या लिखना है? यूनिट सेंटीमीटर मीटर जब लिखते हैं वहां पे आपको स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्क्वायर मीटर लिखना है. Of rectangle is equal to और length. जब पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं ओनली यूनिट यू हैव टू राइट सेंटीमीटर एंड मीटर. स्क्वायर लिखना नहीं है वहां पर. सिर्फ एरिया में हम स्क्वायर मीटर लिखते हैं और वॉल्यूम में क्यूब मीटर लिखते हैं, क्यूब सेंटीमीटर लिखते हैं. सो फर्स्ट वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल Multiplied by breadth. Length into breadth. Area of rectangle 3. is equal to Area of right-angled triangle is equal to 1/2 multiplied by product of sides making right angle. so यहाँ 4. पर मैंने Area of triangle बताया आपको कि हाइट वाले ट्राइंगल्स होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अभी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, is equal to 1/2 multiplied by base multiplied by height. हाँ. सो सॉरी, दिस इज हाइट. Let's learn. Area of parallelogram. Activity. Draw a big enough parallelogram ABCD on a paper as shown in the figure. Draw perpendicular AE on side BC. Cut the right-angled triangle AEB. Join it with the remaining part of quadrilateral ABCD as shown in the figure. तो यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम का बताया. पैरेललोग्राम का और रेक्टेंगल का सेम होता है फॉर्मूला. क्यों सेम होता है? यहाँ पे हाइट जब इन्होंने ड्रॉ करके बताया और कट करके यहाँ पे ज्वाइन किया तो कौन सा फिगर बना है? रेक्टेंगल. सो इसके लिए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का Note that Same the formula. new figure formed is a rectangle. The rectangle is formed from the parallelogram, so areas of both the figures are equal. सो यहाँ पे Base- बताया पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल एरियाज ऑफ बोथ द फिगर्स आर इक्वल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सेम फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ. सो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है पैरेललोग्राम के लिए एंड रेक्टेंगल के लिए. Base of parallelogram is one side length of the rectangle and its height is the other side breadth of the rectangle. Therefore, area of parallelogram is equal to base multiplied by height. Remember that if we consider one of the parallel sides of a parallelogram as a base, then the distance between these parallel sides is the height of the parallelogram corresponding to the base. सो यहाँ पर बता रहे कि ये जो लाइन हाइट ड्रॉ किया है तो ये डिफरेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Segment DP is perpendicular to side BC. Segment AR is perpendicular to side BC. If side BC is a base, then height is equal to length of AR is equal to length of DP is. सो यहाँ पर क्या बताया? सेगमेंट डीपी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी. सो सेगमेंट डीपी दिख रहा है ब्लू लाइन में, सेगमेंट डीपी ये परपेंडिकुलर टू साइड बीसी. आपका साइड बीसी कहाँ पर है? यहाँ पे रेड लाइन से परपेंडिकुलर बना है डीपी एंड सेगमेंट ए आर इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू साइड बीसी. साइड बीसी
रेड लाइन BC यहाँ से यहाँ तक. If side BC is a base, then height is equal to length of AR and length of DP is equal to length of DP is equal to height is equal to H. If segment CQ is perpendicular to side AB and if we consider segment AB as a base, then corresponding height is length of QC is equal to K. Therefore, area of quadrilateral ABCD is equal to length of BC multiplied by H is equal to length of AB multiplied by K. So यहाँ पर क्या बताया है? If segment CQ is a perpendicular to side AB, CQ is a perpendicular to side AB. This is AB and this is perpendicular line CQ. If we consider segment AB as a base, अगर ये AB as a base consider करोगे, तो then corresponding height is QC. The corresponding height is QC. That is K. They have given variable K. Therefore, area of parallelogram ABCD is equal to length of BC into height. What is BC? Here, base into height is equal to length of AB into K. K is what? Perpendicular. Solved examples. Example 1. If base of a parallelogram is 8 centimeters and height is 5 centimeters, then find its area. So यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, if a base of a parallelogram is 8 centimeter and height is 5 centimeter, then find its area. So parallelogram का area तो पता है फॉर्मूला, तो कैसे फाइंड आउट करना है देखिए. Solution. Area of a parallelogram is equal to base multiplied by height is equal to 8 multiplied by 5 is equal to 40. So Therefore, area of the parallelogram is 40 square centimeter. So area of a parallelogram is 40 square centimeter. Square centimeter क्यों लिखना है? Because it is area. We are finding the area of a parallelogram. So you have to write in a square unit, centimeter square and meter square. Meters. Example 2. If area of a parallelogram is 112 square centimeters and base of it is 10 centimeters, then find its height. अभी यहाँ पर इस समय क्या बताया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 112 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया दिया है यहाँ पे और बेस दिया है 10 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला सेम एज इट इज. Solution. Area of a parallelogram is equal to base multiplied by height. Therefore, 112 is equal to 10 multiplied by height. 112 upon 10 is equal to height. So यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 112 और बेस दिया है 10 एंड इनटू हाइट. हाइट हमें फाइंड आउट करना, तो एज इट इज हाइट हम लिखेंगे यहाँ पर. और जब इस 10 को यहाँ पर इक्वल टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, यहाँ पे डिवीजन होगा, यानी we have to divide 112 by 10. So we will get height. Let's see what is height. Therefore, height is equal to 11.2. Therefore, height of the parallelogram is 11.2 centimeters. So यहाँ पर आपको आंसर मिला, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 11.2 सेंटीमीटर. सो विदाउट कैंसिलेशन, विदाउट डिवीजन यू कैन डू डेसिमल. यहाँ पे आप डेसिमल का भी यूज कर सकते हो. डेसिमल का चैप्टर आपने लर्न किया है 5th और 6th में, तो आपको पता होना चाहिए डेसिमल हमें कैसे अप्लाई करना है. सो यहाँ पे 10 है डिनोमिनेटर में. सो आपको विदाउट डिवीजन यू कैन डायरेक्टली राइट 11.2 बिकॉज 10 इट मीन्स यू हैव टू पुट 1 डेसिमल पॉइंट बिफोर यूनिट नंबर. यूनिट के पहले एक डेसिमल पुट करेंगे और ये 0 कैंसिल होगा, तो यू हैव टू राइट 11.2. अगर यहाँ पे 100 होता, नीचे डिनोमिनेटर में 100 होता, आप क्या करते थे? 2 नंबर के पहले यानी यूनिट और टेंस के पहले बाद यहाँ पे नंबर डेसिमल पॉइंट लगाते थे.
तो यहाँ पे 10 ही दिया है, आप डायरेक्टली डिवीजन नहीं करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे डेसिमल यूज कर सकते हो 11.2. Practice set 15.1. 1. If base of a parallelogram is 18 centimeters and its height is 11 centimeters, find its area. Solution. Given base So इस practice set 15.1 में if a base of a parallelogram is 18 centimeter and its height is 11 centimeter, find its area. तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोला है? एरिया. तो बेस और हाइट दिया है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्मूला बताइए कमेंट बॉक्स में. व्हाट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला. किसी ने नोट डाउन नहीं किया लगता है. हाँ, भार्गव मास्कर, बेस इनटू हाइट. मयंक कुरैशी, बेस इनटू हाइट. यस, राइट. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. is equal to 18 centimeters, height is equal to 11 centimeters. Area of parallelogram is equal to base multiplied by height is equal to 18 multiplied by 11 is equal to 198 square centimeters. सो यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे देख सकते हो 198 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है. तो स्क्वायर SQ आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डॉट डेसिमल डॉट देकर और सेंटीमीटर लिख सकते हो. अदरवाइज यू कैन राइट सेंटीमीटर और इंडेक्स में 2 भी लिख सकते हैं. स्क्वायर Area of the parallelogram is 198 square centimeters. 2. If area of a parallelogram is 29.6 square centimeters and its base is 8 centimeters, find its height. Solution. Given area of a parallelogram is equal to. सो यहाँ पे क्या पूछा है? इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट. यहाँ पे हमें हाइट फाइंड आउट करना है. To 29.6 square centimeters. Base is equal to 8 centimeters. Area of parallelogram is equal to base multiplied by height. Therefore, 29.6 is equal to 8 multiplied by height. Therefore, height is equal to 29.6 upon 8 is equal to 3.7 centimeters. Therefore, height of the parallelogram is 3.7 centimeters. सो यहाँ पर आपको दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट यू हैव टू फाइंड आउट. सो हाइट इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नंबर लेकर आते हैं, जैसे ये 8 और लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जब नंबर जाता है तो इसका बीच का जो साइन है इनटू है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो वो होगा अपोजिट में डिवीजन. तो राइट हैंड वाले नंबर लेफ्ट हैंड में जाकर डिवीजन में कन्वर्ट होगा. अगर यहाँ पर आपको प्लस में होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर वो माइनस में कन्वर्ट होता है. तो ये रूल याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नंबर राइट हैंड साइड से जाता है तो उसका अपोजिट होता है. बीच के साइन देखना है आपको. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसीलिए हमें यहाँ पे डिवीजन करना है इस 8 को. अगर यहाँ पे प्लस होता हम यहाँ पे माइनस करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता है हम यहाँ पे प्लस करते हैं, अगर यहाँ पे डिवीजन होता है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे. बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है यानी 8 इंटू हाइट है, तो हमें हाइट फाइंड आउट करना है. यानी ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड से हम ये नंबर 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ रहे हैं, यानी इक्वल टू के इस तरफ जा रहा है वो. तो इस तरफ जा रहा है यानी आपको मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है डिवीजन, वो कन्वर्ट करना है 29.6 डिवाइड बाय 8. सो आपको यहाँ पे डिवीजन करना है. 3. Area of a parallelogram is 83.2 square centimeters. If its height is 6.4 centimeters, find
the length of its base. Solution. Given area of parallelogram is equal to 83.2 square centimeters. सो इस सब में क्या दिया है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम दिया है 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 6.4 सेंटीमीटर. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस. सो बेस फाइंड आउट करना है. ओके और कमेंट में अविनाश खेड़ेकर आपको क्या समझाने, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझा आप कमेंट में कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको. प्लीज कमेंट कीजिए. Height is equal to 6.4 centimeters. Area of parallelogram is equal to base multiplied by height. Therefore, 83.2 is equal to base multiplied by 6.4. Therefore, base is equal to 83.2 upon 6.4 is equal to 13 centimeters. Therefore, the length of the base is 13 centimeters. Area of a rhombus. Activity. Draw a rhombus as shown in the adjacent figure. We know that diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. Let length AC is equal to D1 and length BD is equal to D2. Quadrilateral ABCD is a rhombus. Its diagonals intersect in the point P. So, we get 4 congruent right-angled triangles. Sides of each right-angled triangle are 1/2 length of AC and 1/2 length of BD. Areas of all these 4 triangles are equal. Length of AP is equal to length of PC is equal to 1/2 length of AC is equal to D1/2. सो यहाँ पे क्या बताया, ड्रॉ अ रोम्बस एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर. यहाँ पे रोम्बस ड्रॉ करके दिया है. वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर होता है. तो लेट लेंथ ऑफ AC, अभी लेंथ ऑफ AC यानी ये क्या है, डायगोनल है, इसको D1 मानेंगे और लेंथ ऑफ BD इसको हम D2 समझेंगे. तो डायगोनल्स कितने हैं यहाँ पर, 2 डायगोनल्स है, 2 डायगोनल्स है और D1 और D2. And length of BP is equal to length of PD is equal to 1/2 length of BD is equal to D2/2. सर प्रीवियस का करना है. Therefore, area of rhombus ABCD is equal to 4 multiplied by area of triangle APB, which is equal to 4 multiplied by 1/2 multiplied by length of AP multiplied by length of BP. Rhombus. Its diagonals intersect in the point P. So इसका यहाँ पर 2 डायगोनल्स है जहाँ पे सेंटर पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है पॉइंट P. नेम क्या दिया है, पॉइंट P. सो वी गेट 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल. अगर ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होता है तो हमें क्या मिल रहा है, 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रहा है. We get 4 congruent right-angled triangles. Sides of each right-angled triangle are 1/2 length of AC and सो साइड्स ऑफ ईच राइट एंगल ट्राइंगल आर. अभी यहाँ पर हाफ इंटू लेंथ ऑफ AC दिया है, यानी AC हमारा D1 डायगोनल है AC, तो उसका हाफ लिया है इस ट्राइंगल में, यानी AP ये हाफ हुआ, ये CP ये हाफ हुआ इस ट्राइंगल में, यानी एक डायगोनल को इक्वली इस ट्राइंगल में डिवाइड किया है, इस ट्राइंगल में इक्वली डिवाइड किया है, और नेम होगा AP और CP. तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है साइड ऑफ ईच ट्राइंगल
each right angle triangle are half into length of AC and half into length of BD, यानी इस डायगोनल में भी एक ये हाफ साइड यानी BP इस ट्रायंगल में यूज हुआ है और इस ट्रायंगल में DP यूज हुआ है, यानी एक डायगोनल को हमें दो साइड्स को यूज हुआ है, दो ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल के साइड्स में हमें एक डायगोनल यूज किया है. And 1/2 length of BD. Areas of all these four triangles are equal. Length of AP is equal to length of PC is equal to 1/2 length of AC is equal to D1/2. सो यहाँ पे बताया लेंथ ऑफ AP, आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेनेशन दिया है. लेंथ ऑफ AP और CP ये इक्वली डिवाइड किया है और पूरा डायगोनल है AC, तो AC को इक्वली हाफ ऑफ में डिवाइड किया है, तो यानी लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PC, यानी लेंथ ऑफ AP जितना होगा, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ AP अगर 3 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ CP ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इक्वली डिवाइड किया है हाफ इंटू लेंथ ऑफ AC. इसका मतलब क्या है, डायगोनल जो हमारा है यहाँ पर AC को हमें डिवाइड करना है इक्वली, और ये दोनों ट्राइंगल के लिए यूज हुआ है AP एंड PC, तो यानी इक्वल यहाँ पे साइन दिखा रहा है लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PC, यानी दोनों का मेजरमेंट सेम होगा. अगर यहाँ पे 3 होगा तो ये CP भी 3 होगा, AP 3 होगा तो CP भी 3 होगा. ये होगा डायगोनल D1. And length of BP is equal to length of PD is equal to 1/2 length of BD is equal to D2/2. सो यहाँ पर डायगोनल D2 के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया है. डायगोनल BD है, उसका हाफ में दोनों दोनों ट्रायंगल को यूज किया है एज अ बेस. समझो BP आप देख सकते हो सेंटर पॉइंट P है और यहाँ पे वर्टेक्स B है. BP ये साइड हुआ और DP ये साइड हुआ, तो यानी ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, यानी BP 4 होगा तो DP भी 4 होगा. इसलिए इक्वल का साइन दिया है एंड हाफ डिवाइड किया इक्वली, बिकॉज इट इज अ रोम्बस. सो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आल्सो इक्वल होते हैं. Therefore, area of rhombus ABCD is equal to 4 multiplied by area of triangle APB, which is equal to 4 multiplied by 1/2 multiplied by length of AP multiplied by length of BP. सो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स बने थे हमारे? 4 ट्राइंगल्स. सो हर एक ट्राइंगल का हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला अगर यूज करोगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स होती है, 4 इंटू साइड फॉर्मूला. बट ये साइड पे आपको ट्राइंगल का नाम लेना है. इस साइड पे ट्राइंगल का नाम क्या लोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB. ये हुआ वन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ. तो राइट एंगल ट्राइंगल और फॉर्मूला क्या है? ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे हमारा बेस क्या होगा? AP, और हाइट क्या होगा? BP, और ये होगा हाइपोटेनियस. सो बट ये नहीं लेना हमें, फॉर्मूला क्या है हमारा, उसी फॉर्मूला को यूज करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर इस ट्राइंगल का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो ये भी फाइंड आउट होगा आपको. Is equal to 2 multiplied by D1/2 multiplied by D2/2, which is equal to 1/2 multiplied by D1 multiplied by D2. Therefore, area of a rhombus is equal to 1/2 multiplied by product of lengths of diagonals. सो यहाँ पर बताया कि 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो यहाँ पर हमारा बेस क्या है और यहाँ पे कैंसिलेशन किया है. देखो 4 2 के टेबल में आता है 4 2 2 ज़ा 4. यहाँ से डिवीजन हो गया, क्रॉस डिवीजन किया है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4. सो रिमेनिंग क्या बचा है? 2. यहाँ पे 2 बचा है. यहाँ पे AP क्या है? D1 का हाफ है. AP यहाँ पे डायगोनल दिख रहा है आपको AC इज व्हाट? D1,
और बी डी इज वॉट D2। सो यहाँ पे आपको AP लिया है, AP मतलब बेस, और बेस क्या है, कौन से डायगोनल का AP बेस लिया है, D1 का लिया है, इसलिए हमें D1 डायगोनल का हाफ लिया है, AC इज अवर डायगोनल 1, सो उसका हाफ लिया है, इसलिए हमें D1 अपॉन 2 लिखना है। और यहाँ पे BP क्या है, BD का डायगोनल है, हाफ लिया है, BD डायगोनल है और उसका हाफ लिया है BP, इसलिए हमें D2 अपॉन 2 लिखना है यहाँ पे। और बचा क्या है, हाफ इंटू D1 अपॉन D2। यहाँ पर भी आपको देख सकते हो फॉर्मूला दिया, एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो भी लेंथ्स होंगे डायगोनल्स के उसको मल्टीप्लाई करना है। Solved examples. Example 1. Length of the Aishwarya, what is your question? What is your doubt? Please कमेंट में कीजिए। ऐश्वर्या राठौड़। So I am continuing. The diagonals of a rhombus are 11.2 centimeters and 7.5 centimeters respectively. Find the area of rhombus. Solution. Area of a rhombus is equal to 1 upon So यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, सो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने के लिए, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डायगोनल्स का वैल्यू पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 11.2 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बताइए, अभी जस्ट नाउ हमने पढ़ा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कीजिए। Area of rhombus, Aishwarya Rathod, please comment. What is your doubt? क्या नहीं समझ रहे आपको? मारियन कुरेशी, आपको क्या पूछना है पूछ सकते हो। क्या डाउट है, क्या नहीं समझ रहे? तो किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना। upon 2 multiplied by product of lengths of diagonals, which is equal to 1 upon 2 multiplied by 11.2 upon 1 multiplied by 7.5 upon 1. सो यहाँ पर फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल, यानी प्रोडक्ट यानी बताया मैंने मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी आपका डायगोनल्स का वैल्यू होगा। तो हमारा फर्स्ट डायगोनल D1 का वैल्यू है 11.2 सेंटीमीटर एंड D2 का वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर। सो प्रोडक्ट बोला है, यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन करके। is equal to 5.6 multiplied by 7.5, which is equal to 42 square centimeters. सो यहाँ पर देख सकते हो हाफ पे जो 1/2 है, 2 डिवाइड बाय 11.2 से किया है, कैंसिलेशन किया, क्रॉस कैंसिलेशन किया है, 2 1 ज़ा 2, 2.5 है। यहाँ पे 2 के टेबल में 11 तो नहीं आता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 5 ज़ा 10 लोगे, तो रिमेनिंग 1, तो 1 कहाँ पे लोगे, बिसाइड 2 के बाजू में लोगे तो 12 होगा, यानी 5.6 आपको मिलेगा। 11.2 का हाफ होता है 5.6, तो यहाँ पे मिला है आपको 5.6 डिवाइड बाय 2 किए तो 11.2 को। और यहाँ पे और क्या बचा है, 7.5, तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय 7.5 जब करते हो आपको एरिया ऑफ रोम्बस मिलेगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। Example 2. Area of a rhombus is 96 square centimeters. One of Aishwarya Rathod, how many times we should tell that teach from 10th lesson?
So we are teaching second semester lesson area. So of the diagonals is 12 centimeters. Find the length of its side. Solution. Let quadrilateral ABCD be a rhombus. Diagonal BD is of length 12 centimeters. Area of the rhombus is 96 square centimeters. So, first find the length of diagonal AC. So यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर, वन ऑफ डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड. तो यहाँ पे क्या बताया है कि एरिया ऑफ डायगोनल दिया है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर और एक डायगोनल का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ इट साइड. तो दूसरा साइड का हमें फाइंड आउट करना है. ओके तो दूसरा डायगोनल का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो सोल्यूशन, लेट quadrilateral ABCD be a rhombus. Diagonal BD is of a length 12 centimeter. BD कितना है 12 सेंटीमीटर है and area of rhombus is what 96 centimeter square centimeter. So first find the length of the diagonal AC, यानी इस diagonal को वैल्यू फाइंड आउट करना है, AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है. मारियन कुरैशी मैम 10th चैप्टर से है सेकंड सेमेस्टर. ओके 10th चैप्टर आपको नेक्स्ट लेक्चर में से सिखाऊंगी मैं. प्रैक्टिस सेट 15.1 अरविंद के प्रैक्टिस सेट 15.1 है और 10th चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर लूँगी. आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट्स हो प्लीज कमेंट कीजिए. ओके नो कमेंट. मैं स्टार्ट कर रही हूँ. Area of a rhombus is equal to 1/2 multiplied by product of lengths of diagonals. Therefore, 96 is equal to 1/2 multiplied by 12 multiplied by length of AC. Therefore, 96 is equal to 6 multiplied by length of AC. Therefore, length of AC is equal to 16 centimeters. Let E be the point of intersection of diagonals of a rhombus. Diagonals are centimeters. So, first find the length. So यहाँ पे एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला बताया है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स. सो एरिया ऑफ रॉम्बस का वैल्यू कितना है यहाँ पर 96 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स बोला है. प्रोडक्ट का मतलब बताया आपको मैंने कि मल्टीप्लाई करना है. तो प्रोडक्ट ऑफ वन लेंथ ऑफ डायगोनल. सो एक डायगोनल का वैल्यू कितना है यहाँ पर, वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर. तो एक डायगोनल का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज AC फाइंड आउट करना है. ओके 96 is equal to 6 multiplied by length of AC. Therefore, length of AC is equal to 16 centimeters. Let E be the point of intersection of diagonals of a rhombus. Diagonals are perpendicular bisectors. Therefore, length of AC is equal to 6. सो यहाँ पर 2 से कैंसिलेशन किया है 12 के साथ. 2 1 2 2 6 12 किया है. तो रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ पे 1 इंटू 6 इंटू AC. सो इस 6 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आते हो तो क्या होगा, डिवाइड. तो 96 डिवाइड बाई 6 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 16 सेंटीमीटर. आपको वैल्यू मिलेगा लेंथ ऑफ AC का. Let E be the point of intersection of diagonals of a rhombus. सो यहाँ पे क्या बोला, लेट E बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस. सो ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का.
डायगोनल AC और डायगोनल BD का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? E है। और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है ये दोनों डायगोनल्स एट पॉइंट E। Diagonals are perpendicular bisectors of each other. Therefore, in triangle ADE, measure of angle E is equal to 90 degrees. सो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑलवेज कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। सो यहाँ पे क्या बताया? इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया है ब्लू कलर इन ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल E इज व्हाट? 90 डिग्री। E कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इट इज परपेंडिकुलर लाइन। Length of DE is equal to 1 upon 2, length of BD is equal to 1 upon 2 multiplied by 12 is equal to 6. सो यहाँ पे लेंथ ऑफ DE अगर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? पिछले वाले एग्जाम्पल भी समझा है पैरेललोग्राम में। अगर कोई भी डायगोनल का आपको हाफ फाइंड आउट करना है तो पूरा डायगोनल लोगे BD इज इक्वल टू हाफ इंटू जो डायगोनल का हाफ फाइंड आउट करना है वो उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर बताया लेंथ ऑफ DE फाइंड आउट कर रहे हैं हम इस डायगोनल में। डायगोनल कौन सा है हमारा? D1 DB इज अ डायगोनल, DB इज अ होल डायगोनल। उसमें से हमें हाफ DE फाइंड आउट करना है। सो इसका वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं हम राइट हैंड साइड पे लेते हैं DE इज इक्वल टू, अभी BD का हम हाफ कर रहे हैं, बराबर BD का हम हाफ कर रहे हैं, इसलिए हमें हाफ इंटू BD लिखना है। BD क्या है? ये डायगोनल है, इस डायगोनल का हाफ फाइंड आउट करना है हमें, तो इसलिए 1 अपॉन BD 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ BD। तो लेंथ ऑफ BD दिया है हमें 12 सेंटीमीटर और वहां पे बाजू में लिखा है हाफ यानी 1 अपॉन 2 दिया है। 2 को 12 से कैंसिलेशन डिवाइड किया है, सो 2 1 2 2 6 12। सो हमें आंसर मिला है D का 6। सो 12 का हाफ होता है 6 सेंटीमीटर। सो द डायगोनल BD 12 सेंटीमीटर है तो DE कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। Length of AE is equal to 1 upon 2, length of AC is equal to 1 upon 2 multiplied by 16 is equal to 8. सो यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट डायगोनल का भी फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ AE इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ AC ये डायगोनल है तो उसका हाफ करते हो तो आपको मिलेगा AE का वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे दिया है हाफ इंटू इस AC का क्या वैल्यू दिया है? लेंथ ऑफ AC हमें मिला है 16 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ AC इज 16 सेंटीमीटर। 16 का हाफ क्या होता है? 16 का हाफ क्या होता है? 8 सेंटीमीटर। सो A इज 8 सेंटीमीटर। जब ये AC 16 होगा इसका हाफ करते हो दैट इज AE, आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर। Using Pythagoras theorem, we get length of AD square is equal to ऐश्वर्या राठौड़, क्या एक्सप्लेनेशन दूं आप प्लीज मुझे बताइए, क्या नहीं समझ रहा आपको? आपको बोर्ड यूज करके समझाऊं क्या? आप कमेंट में कीजिए। प्लीज कमेंट। सो बोर्ड यूज करके बताओ क्या मारियन कुरैशी? सो आप सब बोर्ड यूज करके, फिर उनको नहीं समझ रहा है। सो वेट प्लीज वेट स्टूडेंट, मैं बोर्ड यूज करके आपको समझाती हूँ। अगर रीड आपको नहीं समझ रहा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे नहीं समझ रहा है, मैं बोर्ड पे समझाती हूँ। संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज
जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना मैं फिर से एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। कमेंट में कोई नहीं बोल रहा है कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा सम समझ रहा नहीं है। प्लीज कमेंट। ऐश्वर्या राठौड़, आपको क्या नहीं समझ रहा था अभी बताओ। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज जो आजकल के बच्चे भी ना, क्यों, क्या हुआ? पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जब देखो तब लैपटॉप लेकर गेम खेलते रहता है, बिल्कुल तुम्हारे इस आरव की तरह। कब से बस गेम ही खेले जा रहा है। वो गेम नहीं खेल रहा है, वो तो पढ़ाई कर रहा है। क्या? होम रिवाइज का ई लर्निंग स्टडी प्रोग्राम है। अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े। बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान। स्क्रीन पे नहीं हुआ मेरा। संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े। बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान। 100. To 64 plus 36 is equal to 100. Therefore, length of AD is equal to 10 centimeters. Therefore, side of the rhombus is 10 centimeters. Practice set 15.2. 1. Lengths of the diagonals होम of the रिवाइज का rhombus ई लर्निंग are स्टडी प्रोग्राम 15 जो centimeters सीबीएसई और and महाराष्ट्र 24 स्टेट बोर्ड के centimeters. सिलेबस पर आधारित है, जिसमें टेक्स्ट बुक Practice का set हर सेंटेंस 15.2. बच्चे टीवी या लैपटॉप पर एनिमेटेड मूवी की Practice तरह set देखकर 15.2. एंजॉय कर सकते हैं, 1. जिससे उनकी पढ़ाई Length of उनके the गेम की diagonals तरह of a इंटरेस्टिंग हो rhombus जाती are है। 15 वो खुद से ही पढ़ते हैं और and रिजल्ट भी 24 अच्छे लाते हैं। centimeters. होम Find रिवाइज its से area. अब पढ़ाई हुई आसान। Solution.
area of the rhombus is equal to 1 upon 2 multiplied by product of lengths of diagonals is equal to 1 upon 2 multiplied by 15 multiplied by 24, which is equal to 15 multiplied by 12, which is equal to 180 square centimeters. Therefore, the area of the rhombus is 180 square centimeters. 2. Lengths of the diagonals of a rhombus are 16.5 centimeters and 4. Two. Length of प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 2 था. 2. Lengths of the diagonals of a rhombus are 16.5 centimeters and 14.2 centimeters. Find its area. Solution. Area of rhombus is equal to 1 upon 2 multiplied by product of lengths of diagonal is equal to 1 upon 2 multiplied by 16.5 multiplied by 14.2, which is equal to 16.5 multiplied by 7.1, which is equal. So यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ rhombus आर गिवन. यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ rhombus आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. तो यहाँ पर इस rhombus का एरिया फाइंड आउट करने बोला है. तो एरिया ऑफ rhombus का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स. ओके, सो 1/2 प्रोडक्ट. सो एक डायगोनल का वैल्यू कितना है? 16.5 सेंटीमीटर एंड अदर डायगोनल इज व्हाट? 14.2 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ से मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ 14.2 को. तो 14.2 का हाफ होता है 7.1. बस यस, राइट. सो क्या बचा है? 16.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर. सो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलेगा equal to 117.15 square centimeters. So the Therefore, the area of the area of rhombus is 117.15 square centimeter. Okay. The rhombus is 117.15 square centimeters. 3. If perimeter of a rhombus is 100 centimeters and length of one diagonal is 48 centimeters, what is the area of the quadrilateral? यहाँ पे क्या बता? If a perimeter of a rhombus is 100 centimeter and the length of one diagonal is 48 centimeter, so what is its area of the quadrilateral? तो quadrilateral का area find out करना है. Okay. Solution. Let quadrilateral ABCD be a rhombus and E be the point of intersection of its diagonals. So यहाँ पर diagonal क्या है? AC and DB is a diagonal and E is a perpendicular bisector at point E. Or you can say point of intersection. E be the point of intersection of its diagonal. Diagonal AC is of length 48 centimeters. Diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other. Therefore, length of AE is equal to 1/2 length of AC, which is equal to 1/2 multiplied by 48 is equal to 24 centimeters. So यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल्स दिया है, आपको AE का फाइंड आउट करना है. ओके, सो फर्स्ट डायगोनल का वैल्यू कितना है? 48 सेंटीमीटर, दैट इज AC. और AE फाइंड आउट करना है तो 48 का हाफ आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, तो 24 होता है. डिवाइड बाई 2 करोगे बिकॉज डायगोनल का हाफ करते हैं D1/2.
तो दैट इज लेंथ ऑफ AE इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ AC। AE क्या है हमारा, इस ट्राइंगल का बेस है, यानी इस डायगोनल का हाफ है। सो हमारा डायगोनल 48 है, उसका हाफ होगा 24। Perimeter of rhombus is equal to 4 multiplied by side. Therefore, 100 is equal to 4 multiplied by length of AD. Therefore, length of AD is equal to 100 upon 4 is equal to 25 centimeters. Therefore, 100 is equal to सो पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर।